તમે ત્રિમંત્ર બોલા, હું ફોલો કરીશ. ઓકે. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વાયરિયાણમ. નમો વત્સયાણમ. નમો વજ્રાયાણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. નમો લોએ સવ્વ સાહુણમ. એસો પંચન મુકારો. એસો પંચનમુક્કારો. સૌ પાવપનાસણો. સવ્વ પાવપણાશણો. મંગલાણં ચ સદેસિન. મંગલાણમ ચ સવ્વેસિમ. અડમમ હવૈ મંગલમ. પડમમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. તમે બોલાવો મંગલાચરણ, હું ફોલો કરું છું. નિજ સ્વભાવ સે સદગુરુ. નિજ સ્વભાવ સે સદગુરુ. ગુરુ લઘુ સર્વજ્ઞ હૈ. ગુરુ લઘુ સર્વજ્ઞ હૈ. સૂક્ષ્મતમા સિદ્ધ પરમ ગુરુ. સૂક્ષ્મતમા સિદ્ધ પરમ ગુરુ. સત્યમ નિશ્ચય વંદ્ય હૈ. સત્યમ નિશ્ચય વંદ્ય હૈ. ત્રિસકોટિ દૈવગણ. તેત્રીસ કોટી દેવગણ. ઈશ્વહિતાર્થે સ્વાગતમ. વિશ્વહિતાર્થે સ્વાગતમ. જગ કલ્યાણક યજ્ઞ મેં. જગ કલ્યાણક યજ્ઞ મેં. મંગલમય દ્યો આશીષમ. મંગલમય દ્યો આશીષમ. સિદ્ધ સ્વરૂપી મૂર્તમો. સિદ્ધ સ્વરૂપી મૂર્તમોક્ષ. બલથી ભૂલકો માફી દ્યો. ગલતી ભૂલકો માફી દ્યો. વ્યવહારે સદબુદ્ધિ હો. વ્યવહારે સદબુદ્ધિ હો. નિશ્ચય મેં અભિવૃદ્ધિ દ્યો. નિશ્ચય મેં અભિવૃદ્ધિ દ્યો. નિશ્ચય મેં અભિવૃદ્ધિ દ્યો. નિશ્ચય મેં અભિવૃદ્ધિ દ્યો. જય સચ્ચિદાનંદ. પ્રશ્નો લઈએ હવે. હા લઈએ. हाँ, कश्यप जी अनम्यूट कीजिए. जय सच्चिदानंद. हाँ जी, जय सच्चिदानंद. बधाने जय सच्चिदानंद. नरेश जी जय सच्चिदानंद. कुलीनानंद जी जय सच्चिदानंद. हाँ हाँ, ये शेयर करता हूँ, 1 मिनट. એ દાદાવાની 2020 ઓગસ્ટ દાદાની સાંકલ ખેંચતા આવે નિવેડો. કશ્યપ જી, हाँ जी, તમે નહીં વાંચો, પુલિનાનજી વાંચશે તો વધારે સારું પડશે. આ રેફરન્સ થોડું આપું ને. હા, તમે રેફરન્સ આપો. બરાબર છે, તમે 22, રેફરન્સ આપો અને ક્યાંથી ક્યાં સુધી વાંચે તો સારું પડશે. હા 22 પાના 22. આ થોડું, હા આ રેફરન્સ આપું નું પહેલે જો. ઠીક છે.
हाँ हाँ हाँ, ये जो मुझे जानना था, ये दादानी हाँ, ये वाला पैराग्राफ पढ़ी। આ દાદાની કૃપાથી તો બધું ભેગું થાય. કારણ શું? તેમની કૃપાથી બધા અંતરાયો તૂટી જાય. દાદાની કૃપા તો મનના રોગોના અને વાણીના રોગોના, દેહના રોગોના, એ સર્વ પ્રકારના દુઃખોના અંતરાયોને તોડનાર છે. જગતના સર્વસ્વ દુઃખ અહીં જાય. हाँ जी। ઓકે. यहाँ पर मुझे जानना है कि अंतराय टूटते हैं, वो कह रहे हैं ऐसा है, लेकिन हाँ, जो है उसमें मतलब किस हद तक टूटते हैं, वो जानना है जो है। हाँ, अभी आपने थोड़ा बोला, जरा रिपीट करेंगे. दादा वाणी क्या बोला? कौन सा दादा वाणी? 2020 अगस्त 2020 अगस्त. ठीक है. पेज 55, पेज पेज 22. 20 पाना 22। हाँ हाँ, जरा थोड़ा ऊपर का भी पढ़ लेते तो शायद एक रेफरेंस मिल जाएगा. यहाँ से. हाँ આમાં કઈ હાથ ઘાલે નહીં, પણ આ બધાના દુઃખ સાંભળવા પડ્યા છે ને. હું આ દુનિયાના દુઃખો લેવા આવ્યો છું. તમારા સુખ તમારી પાસે રહેવા દો. તમારા દુઃખો મને સોંપી દો. અને જો તમને વિશ્વાસ હોય તો તે તમારી પાસે નહીં આવે. મને સોંપ્યા પછી તમારો વિશ્વાસ તૂટશે તો તમારી પાસે પાછા આવશે. એટલે તમારે કંઈક દુઃખો હોય તો મને કહેવું, હે દાદા, આટલા દુઃખો મને છે તે હું તમને સોંપી દઉં છું. એ હું લઉં તો નિવેડો આવે, નહીં તો નિવેડો કેમ આવે? આ દાદાની કૃપાથી તો બધું ભેગું થાય. કારણ શું? તેમની કૃપાથી બધા અંતરાયો તૂટી જાય. દાદાની કૃપા તો મનના રોગોના અને વાણીના રોગોના અને દેહના રોગો, સર્વ પ્રકારના દુઃખો અંતરાયોને તોડનાર છે. જગતના સર્વસ્વ દુઃખો અહીં જા. हाँ, बस ये दादा की एक करुणा है કે એમને, દાદાની આ કરુણા છે કે એમને બધા લોકોનું કલ્યાણ કરવું છે, બધાના દુઃખ દૂર કરવા છે, બધાને સુખ આપવું છે, મોક્ષ આપવો છે. પણ અત્યારે કળિયુગમાં બધાને કર્મો બધા એવા છે કે પાર વગરના દુઃખો પડે છે. એટલે ત્યાં આગળ દાદા કે એના દુઃખો દૂર થાય તો કંઈ આગળ વધશે. એટલે વ્યવહારના દુઃખો આવ્યા હોય તો ત્યારે આપણે, દાદા કહે છે, તમે મને જો સોંપી દો તો હું એ બધું લેવા તૈયાર છું. અને તમારી પાસે નહીં આવે. હવે આમાં કેવું છે, ખાલી બોલવાથી ના થાય, દાદાની કૃપા પાત્ર બી થવું પડે. કૃપા પાત્ર એટલે આપણે એની આજ્ઞા માટે અને જ્ઞાન માટે સિન્સિયર હોય એટલું. અને એનાથી શું થાય, પછી એ અંતરાય તૂટી જાય એટલે એના જે ભોગવટા આવતા હોય અને ભોગવટાને લીધે જે જ્ઞાનમાં અંતરાયો પડતા હોય એ બધા તૂટી જાય. એટલે મનના રોગ, વાણીના રોગ, દેહના રોગ, બધા દુઃખોના અંતરાયોને તોડનાર છે. આનાથી જે દુઃખ પડે છે મન વચન કાયાના રોગથી, અને એને લીધે જે જ્ઞાન પર આવરણ અંતરાય રૂપે છે એ બધા તૂટી જાય અને બધા જ પ્રકારના દુઃખો અહીં જઈ શકે એમ કે છે. હવે એ કઈ રીતે તૂટે એ તો પ્રાર્થનાનો વિષય છે. આપણે પ્રાર્થના કરીને કીધું ને કે દાદા ભગવાન, આટલા દુઃખો મને છે, હું તમને સોંપી દઉં છું. એટલે એ ભાવથી આપણે સોંપીએ છીએ અને એનાથી પછી જે આ દાદા કહે છે એવું પરિણામ, આ વ્યક્તિગત વર્ણન અનુભવનો પ્રશ્ન છે. એટલે આટલું મને સમજાય કે દાદા આ રીતે બી લેવા તૈયાર છે કરીને. अंतराय टूटे એટલે वो जो मतलब उसका ये है कि वो जो है, मैंने दूसरी जगह पढ़ा था कि जो है त्रिमंत्र और वो सब, उससे जो है दादा भगवान जय जयकार से तो जो शूल होता है उसकी वेदना जो है सुई बराबर हो जाती है, ऐसा ऐसा हो जाता है उसका जो है हाँ effect। तो वो अंतराय टूटना जो है वो जो है मतलब ये है कि जो उसी संदर्भ में कह सकते हैं, उसको लिंक कर सकते हैं। हाँ, बस वही है एग्जैक्टली, कि वो वेदना की इंटेंसिटी कम होने की वजह से ज्ञान जागृति हाँ, के जो अंतराय थे वो दूर हट जाते. अच्छा, ज्ञान जागृति के अंतराय टूट जाते हैं। हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है। फिर अंतराय एक अंतराय तो एना જ છે ને.
एक और एक બધું બીજું કહું છું એક અ, આપવાની બે त्रिमंत्र विज्ञान पाना 215 इसमें लिखा है, मंत्र ए मन ने आनंद पमाड़े मन ने शक्ति आपे इन्हें मन अने मन ने तर्क करे वो समझ नहीं आया, वो समझाइए। मन ने तर्क करे। सर यानी मन को मेरे हिसाब से, इवन आई डोंट हैव द एग्जैक्ट आंसर, बट दी जो मेरे को समझ में आता है वो इतना है कि अ, मन को तर करे એટલે હવે શું કહું, એક आई डोंट नो, रियली आई डोंट नो, मन को स्टेबल करे या मन को थोड़ा अच्छा लगे, इवन आई डोंट नो व्हाट इज तर एग्जैक्टली। સર્વ વિઘ્નોનો નાશ કરે આ આરાધનાથી શૂળીનો ઘાસ હોય સર, બીજા મંત્રો તો મનને તર કરે, यानी मन को आई अब डोंट, देखना पड़ेगा, मुझे भी देखना पड़ेगा, बिकॉज ये शक्ति और आनंद वाला जो भाग है ना, मन को देखना पड़ेगा, उसके नजीक का ही कुछ मीनिंग निकलता होगा। मतलब वो एक तो जो हिंदी में तो वही दिया हुआ है, मन को तर करे, सेम एग्जैक्टली ट्रांसलेट किया हुआ, और इंग्लिश में वो लगेगा कि उसमें माइंड को जो है वो मतलब वो अ, देखना पड़ेगा तर्क मतलब वो अक्रॉस करे जो है, मतलब अक्रॉस पार पार करवाए उस मीनिंग में दिया, उस सेंस में दिया, पार करवाए। पार करा है, हाँ 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 हाँ, तरवानु होता है ना, तरवानु पार करवानु होता है वो हाँ उस हाँ हाँ। मतलब वो मुझे मतलब, लेकिन मुझे डाउट था कि ये सही ट्रांसलेशन है कि नहीं वो इंग्लिश में, तो इसलिए मैंने आपसे पूछा। ये मन को तर करे पार करवान, मन को मतलब संसार से पार कराता है, ये ऐसा कुछ है कि मतलब कि उसको जो है कि शांति देता है, ये दोनों मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन है। मंत्र का क्या काम है, आप बताइए, मंत्र का क्या काम है? बस बस यही है, यही है, ये त्रिमंत्र तो विघ्न को नाश करता है, जैसे सूली का गाढ़ शो से जलता है। दैट इज वेरी ट्रू, दैट इज वेरी ट्रू। हम्म, और उससे आनंद आता है, मन को शक्ति मिलता है, हम्म, यानी क्या है कि जैसे संसार में विघ्न आते हैं तो हमारा मन हम्म, चंचल हो जाता है, उदास हो जाता है, अभी क्या होगा, हम्म, कैसे होगा, इस प्रकार के विचार आते हैं, मन कमजोर होता है। तो ये मंत्र बोलने से तो एक तो मन में शक्ति आती है, नहीं हो जाएगा, मैं इस समस्या का, इस समस्या को मैं फेस करूंगा, उसका सामना करूंगा, ऐसे प्रकार की एक मनोबल आता है। जो मन ढीला पड़ जाए तो मन को शक्ति मिलती है, और एक प्रकार का आनंद भी आता है, नहीं हो जाएगा, मैं हारूंगा नहीं, समथिंग लाइक दैट। तो आनंद और शक्ति इस प्रकार। और मेरे ख्याल से मन ने तौर करे એટલે आई हैव टू लुक इनटू इट, वेदर मन को ये आगे के दो सेंटेंस पढ़िए फिर थोड़ा सा क्लियर। જ્યારે ભગવાન ને આપેલા મંત્રો વિઘ્નનો નાશ કરે, અમારો આપેલો ત્રિમંત્ર સર વિઘ્નો નાશ કરે, આ ત્રિમંત્રની આરાધના તો શૂલ નો ઘાવ સોએ सरे। ये बीजो मंत्र तो मन ने तर करे। मतलब अब ये देखो, दोनों में कंपैरिजन कर रहे हैं कि जो एक तो भगवान का पहले दिए हुए मंत्र और त्रिमंत्र वो विघ्न का नाश करते हैं, और दूसरे मंत्र बोल रहे हैं मन को निरंतर करे। वो ही हो सकता है देखना पड़ेगा, बिकॉज मतलब दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं जो है कि हाँ, लेकिन एक वो तो तर जो तर तर एक गुजराती वर्ड है जिसका प्रॉपर मीनिंग समझना पड़ेगा। या ऐसे मुझे जो समझ में आता है कि वो मन को शांति देते हैं, उस सेंस में ये आना चाहिए जो तर हाँ, करे क्योंकि वो जो है इसी हाँ, यानी मन की जो असर है उसमें हमें मुक्त कर सकता है। हाँ थोड़ा मतलब जहां तक मुझे समझ में आता है, मंत्र का इफेक्ट जो है, जो हम दूसरे मंत्र बोलते हैं, वो मन को थोड़ा शांत करने के लिए होता है। सही है। हो सकता है, आई एम पॉसिबल, आई एम सेइंग, आई एम नॉट सेइंग राइट, बट मंत्र मंत्र से आप बताइए, जो मेरे को मंत्र जो है देखो, मेरे को यानी एक साइड मैंने एक इफेक्ट तो ऐसी होती है कि हाँ, अगर हम मंत्र नहीं बोलते हैं तो हम्म, विचार आते रहते हैं, हो सकता है जो हम्म, बुझना या मुश्किल है उसके विचार अधिक आएंगे। और जब हम ये मंत्र बोलते हैं तो ऑटोमेटिकली वो विचार सब बंद हो जाते हैं, और वो बंद हम्म, हो जाए हम्म, तो मन थोड़ा खुश हो जाता है, नेगेटिव हम्म, विचार या मुश्किल के विचार से उदास हो जाता है। तो हम्म, ये वो बंद हो जाने से मन थोड़ा खुश हो जाता है।
या आपने हम्म बोला ना शांति मिलती है उसको। हम्म 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 सो ये एक फॉल आउट है, इसका एक फॉल आउट है। अगर हम मंत्र में हमारा वो है, हमारा उपयोग हम, तो फिर हम्म, वो दूसरे विचार बंद हो जाते हैं। दूसरे मुश्किल हाँ। विचार उस समय बंद हो जाते हैं। तो वो मन को तर्क करने वाली बात होगी उससे। यानी वो जो वो परेशान वाले और विचार से मुक्ति दिलाता है। इन अ वे इट कुड बी दैट जो परेशान कर रहा है, जो ये विचार वो जो है आप जो बता रहे वो ठीक है कि वो एक वो जो है मतलब दूसरा फोकस बदलना जो है आप बता रहे हैं, ठीक है, फोकस बदल जाता है कि जो है संसार से जो है अंदर की तरफ जाता है तो वो शांति आती है। और वो जो है मतलब हाँ वो शांति, हाँ इसके इस तरह से जो है जो आपने बताया फोकस कर रहे हैं तो वो शांत एंड रिजल्ट क्या जो है वो मन शांत हो जाता है ना, जो है वो जो है जो उछल हाँ। कूद करता है वो शांत हो जाता है ना, एंड अच्छा। रिजल्ट तो यही आएगा ना। हाँ, इंडिविजुअल। हाँ हाँ। हाँ, तो वो ही मेरे को वो शांति के रूप में ही समझ में आ रहा है, ये इसका मीनिंग जो बताना चाह रहे हैं कि मन जो है वो शांत करता है, वो हाँ जो दूसरे जैसे कोई मंत्र हैं उनमें जो शांत करता है, जो उनके कुछ अब मंत्र के जो वाइब्रेशंस भी होते हैं, तो वो वाइब्रेशंस का जो है वो साइंटिफिकली उन्होंने जो है सब मंत्र बनाए गए कि अलग अलग मंत्र का जो है अलग अलग वाइब्रेशंस का अलग अलग इफेक्ट होता है, ठीक है। तो वो जो है उसका क्या इफेक्ट होता है वो साइंटिफिकली बनाया है। और वो लेकिन वो जो है मतलब ये यहाँ से समझ में आ रहा है कि वो विघ्न नाश नहीं करते हैं, क्योंकि वो पार्शियल होते हैं, और त्रिमंत्र जो है वो निष्पक्षपाती होने के वजह से विघ्न नाश करते हैं, जो है वो उस पे देवी देवता राजी खुशी हो जाते हैं, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, सही है। हाँ, सही है, सही है। वो मंत्र मंत्र के जो रक्षक देवी देवता होते हैं, उनकी हाँ सहायता होती है। हाँ। और वो विघ्न को दूर करते हैं या नाश करते हैं। मतलब वो मैंने पढ़ा था कि दादाजी ने उसमें लिखा हुआ था कि वो बोल रहे हैं कि मंत्र इतने सारे हैं वो काम क्यों नहीं करते, क्योंकि जो है वो जो है लोगों को फिर भी जो है मतलब विघ्न क्यों आते रहते हैं। तो क्योंकि वो बोले कि निष्पक्षपाती नहीं है, इसलिए जो है तो इसलिए दादाजी ने निष्पक्षपाती त्रिमंत्र बनाया है, ऐसा मुझे समझ में। नहीं, मंत्र तो हर एक काम करेगा, ऐसा नहीं है। जैसे इवन ये त्रिमंत्र है, उसमें अगर ऊपर का ही मंत्र बोले तो हम्म उसको संन्यास्त मंत्र भी कहा गया है। जो हम्म संसारी नहीं है उसके लिए चलेगा। हम्म हम्म। हम सबको व्यवहार है तो फिर उसको सारे देवी देवताओं के राजीव मिले, इसीलिए तीनों मंत्र बोले तो बेटर है। हाँ तो मतलब कि उसको जो संसारी इसको व्यक्ति है, करते, हाँ, जो इसके संसारी इसमें, व्यक्ति है हाँ। वो अगर खाली नवकार मंत्र बोलेगा तो उसको संसार के विघ्न तो दूर नहीं होंगे ना। दूर नहीं होंगे ऐसा नहीं बोल सकते हैं। इसमें हाँ, क्या है कि हम एक उसको इतना, दूसरे देवी देवताओं का राजीपो नहीं मिलेगा तो हाँ, उसको हाँ, कुछ कुछ विघ्न रहेंगे ना जो है उसमें जो है। हाँ, वी कैन से दैट। हाँ, तो ऐसा। अच्छा, ठीक है, चलो मैं आगे फिर पूछता हूँ जो है। धन्यवाद जी, जय श्री। जय सच्चिदानंद कश्यप जी। अ, सुधीर जी, अनम्यूट कीजिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद पुलिनाथ जी, जय सच्चिदानंद नरेश भाई અને સર્વે મહાત્માઓ। हाँ, बोलो। हाँ पुलिनाथ जी, अभी जो बात चल रहा था ना तार की मीनिंग, मैंने एक्चुअली गूगल में एक सर्च कर रहा था। तो तार की मीनिंग गुजराती में तो भींजावू, भिंजाओ। इंग्लिश में सोफ्ट, हम्म। मतलब दैट इज वन लिटरल ट्रांसलेशन। हाँ हाँ लीटर, हाँ लीटर। तो देखना पड़ेगा। आई हैव नॉट अ गुजराती मीडियम पर्सन, सो आई हैव टू हाँ वही, ऑन इट। ऐसा इंग्लिश में लिखा है वेट, सोक्ड, ड्रेंच्ड, मतलब ऐसा भींजावू जो हाँ, गुजराती में वो बोलते समझिए, हैं। वो जलेबी को उसपे चाशनी में भिगोते हैं ना, वैसा। हाँ हाँ हाँ, इस टाइप का, सो मतलब वो उसको इन अ शांत वे वो पढ़ने मन का को ऐसा शांत ही मेरे करता ख्याल होगा। से। हाँ, हाँ, मन को इसमें एक जगह पे स्थिर करता है, शांत हो जाता है। हाँ, शांत पढ़ने का वही मीनिंग होगा, मतलब लिटरल मीनिंग नहीं, बट उसका क्या बोलते हैं, इनर मीनिंग वही होएगा। होगा। अच्छा, हाँ मेरा प्रश्न ये था,
ये खींच, तीन शब्द है, खींच, पकड़ और आग्रह। ये तीनों नजदीक का शब्द है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? कुछ रेफरेंस है कहाँ पे आपने पढ़ा? नहीं, ये तो एक्चुअली अलग अलग जगह पे खींच यूज किया, अलग अलग जगह पे पकड़ नहीं रखने का, आग्रह नहीं रखने का। तो तीनों शब्दों का मीनिंग ऑलमोस्ट क्लोज मीनिंग है। तो इसमें ऐसा इंटेंसिटी के हिसाब से है कि क्या, ऐसा इन जनरल एक ही है? आई थिंक इट लुक्स मोर लाइक इंटेंसिटी। खींच यानी क्या है कि भाई भाई वो भाई ये जो मेरा व्यू पॉइंट है उसको और खींचना। नहीं नहीं ये ऐसा है, नहीं ये बराबर है, नहीं ये बराबर है, मैं कहता हूँ ऐसा ही है। हम्म। और फिर कोई भी बात में अगर कुछ होती है तो उसका आग्रह रखना है, नहीं भाई नहीं नहीं ऐसा ही करो, ऐसा ही करो, अभी आज क्यों नहीं आते हो, यू नो। खींच यानी दूसरे को अपने व्यू पॉइंट पे खींचना। आग्रह यानी कोई भी चीज के ऊपर आग्रह रखना कि भाई ऐसा ही होना चाहिए, यही सही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आग्रह। पकड़ यानी वो उसको पकड़ के रखना, बात को छोड़ना ही नहीं। आग्रह वाला शायद छोड़ भी दे, लेकिन पकड़ वाला छोड़ेगा हम्म ही नहीं। वो लगाम हम्म छोड़ी, हम्म इसलिए बोला है ना कि भाई अपनी पकड़ सब छोड़ दो। हम्म पकड़ हम्म की बात हम्म को पकड़ना और उसको नहीं छोड़ना। हम्म। पकड़ के पकड़ी राखी है। आग्रह यानी इंसिस्टेंस ऐसा होता है, भाई ऐसा ही करना चाहिए, मेरे तो बहुत अच्छा है, ऐसा ही करो, ऐसा ही करो, ऐसा करो। कोई कभी शादी वादी होती है ना, कोई लोग बोलते हैं नहीं नहीं तू इसी हॉल में शादी कर, इधर ही शादी कर, ऐसे वो आग्रह करते रहते हैं। और वो हम्म। सामने वाला नहीं मैं उसमें करूंगा ही नहीं, वो पकड़ है उसकी, मैं इधर ही करूंगा। हम्म। तो पकड़ तो जस्ट होल्डिंग आप ऑन भी टू इट, जैसे बोले ना, ऐसा। होल्डिंग ऑन टू इट। हाँ, सॉरी। आप भी जैसे बोले ना, मैं भी ऐसे ही समझता हूँ, लेकिन आपने मेरे को कंफर्म करना। जैसे खींच है ना, थोड़ा सा लाइटर इंटेंसिटी में है, उसके बाद आग्रह है, और बाद में पकड़ है जो सिवियर है। हाँ ये हाँ स्टेज के हिसाब से। खींच, खींच यानी खींचना, अपने व्यू हाँ, खींचना। खींचना। लेकिन खींचने के बाद छोड़ भी दे देता है। और आग्रह भी आग्रह रखता है, लेकिन छोड़ सकता है, लेकिन पकड़ नहीं छोड़ता है। हाँ पकड़ नहीं छोड़ेगा। तो ये इंटेंसिटी के हिसाब से ये, मैं, मतलब तीनों शब्द यूज होते हैं, अलग अलग जगह पे हुआ, कोई एक ही जगह पे नहीं हुआ। तो आग्रह आग्रह पे तो दादा भगवान ने काफी और दो चार शब्द भी दिए हैं। एंड हम्म। ही हैज टाइड अप विद द ग्रहस। हम बोलते हैं हाँ ना हाँ कि हाँ। वो प्लैनेट्स होते हैं जो ऊपर के, सूर्य ग्रह, शनि ग्रह। दादा नवग्रह, हाँ। हाँ नवग्रह। वो बाहर ऊपर वाले ग्रह हमें परेशान या नડते नहीं है। ઉપરના ગ્રહ અમને हम्म નડતા નથી, આપણી અંદરના ગ્રહો આપણને નડે છે। પછી એની हम्म અંદર આખું લિસ્ટ બનાવ્યું છે દાદાએ, જેમાં એકમાં हम्म આગ્રહ આવે, પછી દુરાગ્રહ આવે, પછી હટાગ્રહ આવે, પછી મતાગ્રહ આવે, પછી કદાગ્રહ આવે, પછી हम्म હજી એક બે છે એટલે हम्म આગ્રહ हम्म એટલે ભાઈ આમ આમ જ કરો। પછી પોતાના हम्म મતનો આગ્રહ હોય, ભાઈ મારો મત સાચો છે। પછી હટાગ્રહ हम्म એટલે હટ પર ચડી જાય, બસ હું આમ કરીશ જ, જે થાય એ દેખા જાયગા એમ। પછી કદાગ્રહ એટલે એને ખબર પડે કે મારો વ્યૂ પોઈન્ટ હારો ખોટો છે, છતાંય હું આગ્રહ રાખું છું, છતાંય હું આગ્રહ हम्म રાખું છું। he knows that he is wrong, but अभी इज्जत हम्म करने वाले हैं, how I can back out वापिस। तो वो मत को कदाग्रह कहते हैं। मत का आग्रह हम्म मीन्स जानते हुए गलत है फिर भी पकड़े रखते हो, कदाग्रह। हाँ सत्य का आग्रह देखो है, दादा ने हम्म। बताया है कि सत्य का आग्रह भी पॉइजन है। भले आप 100% राइट हो, आपकी बात 100% सही है, राइट फिर राइट। भी उस सत्य का आग्रह वो पॉइजन है मोक्ष मार्ग में, क्योंकि हम्म सहजता से विरुद्ध हो जाता है। हम्म पूर्वग्रह यानी प्रेजुडिस हो जाता है, कि पहले से उसके हम्म पड़ जाता है कि आदमी ऐसा ही करेगा। परिग्रह, हम्म परिग्रह यानी वस्तुओं का इकट्ठा करना, फिजिकल चीजों हम्म। को इकट्ठा करना यानी परिग्रह। कपड़ा है, खाना है, गाड़ी है, ऑल मटेरियलिस्टिक पोजेशंस। राइट। हटाग्रह तो बताया। मिथ्याग्रह यानी एक गलत चीज का आग्रह रखना, जो बात सही ही नहीं है, वो मिथ्या है, गलत है, उसका आग्रह रखना। हम्म और दुराग्रह यानी वो थोड़ा इंसिस्ट करता है, भाई छोड़ता ही नहीं ना, हटाग्रह अपना वो पकड़ जैसा आ जाता है वो। हटाग्रह इज मोर इन द पकड़ कैटेगरी। दुराग्रह यानी कीप ऑन इंसिस्टिंग। आग्रह का थोड़ा इंटेंसिटी पर दुराग्रह में चला जाता है, बेकार में हम्म आग्रह कर रहा है वो।
कितना हो गया और एक, ये कोई तीन, भी चार, जगह पे दादा ने एक हर एक जो ग्रह दिया हो ना उसके साथ ग्रहों का भी, जो अपने प्लेनेट का ग्रह का भी लिंक किया हुआ है, मतलब उसके हिसाब से एक नाम भी दिया है। एक ग्रह होता है तो नहीं नहीं, एक हठाग्रह है ना, हठाग्रह को दादा भगवान ने शनि के साथ लिंक किया है। हाँ 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 हाँ। इनकी वाणी में आया है कि हम लोग बोलते हैं ना, शनि का ग्रह मुझे नड़ रहा है, शनि की साढ़ा साथी है, तो दैट इज हम्म associated विद हठाग्रह, कि आपने वो हट पकड़ के रखी है इसलिए आपको ग्रह नड़ रहा है। अगर आप हट छोड़ दो तो शनि नहीं नड़ता है। नहीं, हार्ट छोड़ दो मीन्स क्या ये बोलना चाहते हैं, हाँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। हट ओ शनि का ग्रह में मेरे को शनि नड़ रहा है, मैं तकलीफ में हूँ, लेकिन उसका एक इंसिस्टेंस होता है मुझे ये करना ही है, इंजीनियरिंग करना ही है, तो मेरा अगर वो हट है तो फिर मेरे को दूर जाना पड़ेगा, कहीं हॉस्टल में रहना पड़ेगा, तो वहाँ पे मुश्किलें का सामना आएगा। तो एस्ट्रोलॉजिकली ये लोग बोलेंगे भाई आपको शनि नड़ रहा है इसलिए परेशानी है, दादा बोले वो तेरा हम्म हट है ना, तेरे को वहाँ जाना है इसके लिए। हम्म तो ये एक बाबत मुझे मालूम है कि मेरे सुनने में या समझने में आया है कि शनि को हठाग्रह के साथ एसोसिएट किया है। बाकी का मेरे को ध्यान में नहीं है, एंड आई एम हम्म नॉट गॉट इन स्पीच, सो आई जस्ट लीव इट। बट हमें इसका एक इसेंस लेना चाहिए कि हम्म जो भी एक ऊपर के ग्रह नहीं, कि हमारे भीतर के ये जो ग्रह है वो हमें परेशान या दुख देते हैं। सो देख लेना हम्म। चाहिए इसमें क्या है। दादा की पूरा विज्ञान ही तो अंतर की है ना। हाँ, आपको शांत, ये तो दादा ने बताया, बाकी बाहर दुनिया में कौन बताता है ऐसी बात। हाँ हाँ हाँ। आज के जो एक ऑडियो क्लिप आया दादा की, हाँ। उसमें दादा ने शुक्लदानी और धर्मदानी जो श्रेणी का जो वाणी है उस हिसाब से उन्होंने बताया। तो कोई भी जगह पे दादा ने लघुता की परिचय दिया उनका खुद का, जे किसी ने महात्मा ने पूछा जे इसका क्या मीनिंग होता है, तो दादा ने बोला ये शुक्लदानी का है, मेरे को भी पता नहीं चलता, मेरा भी 4 डिग्री फूटता है, लेकिन इसको चेक मत मानना, मत मानना। मतलब जो है वो एक कुदरती हिसाब से निकला, इसको मेरे समझ में नहीं आता है, लेकिन इसको चेक मत मारना, जब समझ आएगा तब इसको मतलब असल मीनिंग आएगा। ये शुक्लधनी और धर्मधनी बाहर के जितना भी वाणी है वो सब धर्मधनी है, और दादा की जो भी जितना भी वाणी है वो शुक्लधनी है, इस रेफरेंस में बात किया। हम्म। हाँ तो तो ये, हाँ बोलिए। नहीं, क्वेश्चन क्या, आप क्या कहना क्या चाहते हो? मेरे कहना ऐसा है, ये शुक्लदानी है जो दादा की आप्तवाणी है, कुछ भी वाणी है वो शुक्लदानी है। ये दादा ने मतलब दादा की बोलने का था। बाहर के जितना भी हम लोग धर्म पुस्तक पढ़ते वो सब मतलब धर्मदानी का वाचन करते हैं। શુક્લ જાનીની શ્રેણીથી આ વાણી નીકળી છે, हाँ એટલે हाँ हाँ हाँ। शुक्ल ध्यान की श्रेणी थी, એટલે શું છે कि वो शुक्ल ध्यान में निरंतर रहते हैं, और हम्म। उस अवस्था से जब के स्पीच निकलती है तो वो अत्यंत कल्याणकारी होती है। इसलिए शुक्ल ध्यानी श्रेणी थी निकलेली આ વાણી છે, એટલે એને છેકો मारता नहीं। अगर हाँ बराबर, हाँ समाज में नहीं भी आया है तो भी उसको ये गलत है या अस्वीकार्य है ऐसा मत करना। 100% हम्म स्वीकार्य है, ज्ञानी पुरुष का एक शब्द भी अगर हजम हो जाए तो काम हो जाए। इसलिए क्योंकि हम्म शुक्ल ध्यानी की श्रेणी से निकला हुआ है, उस अवस्था से निकला हुआ है, इसलिए हम्म। इसलिए उसको चेकना मत, कैंसिल मत करना। तो उसकी अवस्था ये है, जो, हमारी भी हाँ। अवस्था जैसे जैसे बढ़ते जाएगी ना, तो हमारी हम्म ऐसी वाणी निकलेगी जो सर्वमान्य होगी, विच इज ट्रू, जो इसको ऊपर वो करना जैसा नहीं होगा, बट आफ्टर अ सर्टन लेवल, अभी नहीं, नॉट नाउ। हम्म। सो हम इसी हिसाब से ले सकते हैं कि शुक्लदानी का जो शुक्लदानी श्रेणी का जो वाणी होता है वो आत्मा स्पर्शी होता है, और आत्मा आत्मा मतलब उस हिसाब से उसका वाणी वो इस हिसाब से होता है। आत्मा स्पर्शी जो बोलते हैं ना, हाँ, आवरण भेदी जिसमें होती अहंकार है। अहंकार रहित होता है। हम्म।
आत्मा को स्पर्श करके निकली हुई है, यानी उन्होंने, उनके पास आत्मा का अनुभव है, और वो अनुभव के आधार से ये वाणी निकली हुई है, इसलिए आत्मा को राइट। स्पर्श करते हुए निकली हुई वाणी। और दूसरा एक शब्द प्रयोग भी किया है कि ये दादा की वाणी आवरण भेदी वाणी है, यानी हाँ। उनके आवरण है, हमारे जो आवरण है, सुनने वाले के जो आवरण है, वो हम्म आवरण को छेद कर भी सामने वाले को उसका अर्थ समझ में आता है, या उसके आवरण छेद कर भी उसको उसका कल्याण करने वाली ऐसी वाणी होती है, आवरण भेदी। हम्म सामान्य आवरण थोड़ी ने એને કલ્યાણ થાય એને વાત સમજાય એવી વાણી હોય છે। बराबर। हाँ, जो आज हम देख ही रहे हैं ना, उनकी स्पीच रिलेटिवली कितनी इजी है समझने में एज कम्पेयर टू अदर स्क्रिप्चर्स, अदर रिलीजन्स। हम्म। પુલિનાજી ક્લિપ આજની ચલાવું? हाँ चलो। ઓડિયો ટ્રાય કરું છું, हाँ ફર્સ્ટ ट्राई। ટાઈમ કરું છું એટલે મને हाँ ट्राई करो, वांधो नहीं। સંભળાય છે? ना ना સંભળાય છે ना ને? ना 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 નહીં સંભળાયું? ना। ना। ઓકે ઓકે, સોરી। ट्राई करो। ઓકે, સોરી સોરી। ના વાંધો નહીં, ટ્રાય કરવું હોય તો કરો, નહીં તો પછી we leave it. ના ના ના, નહીં, આઈ એમ નોટ સક્સેસફુલ, સોરી। हाँ કાંઈ વાંધો નહીં, ચાલો કાંઈ और कोई क्वेश्चन सुधीर जी? हाँ, नहीं, ये जो आपने आवरण भेदी वाणी की बात कर रहे हैं, दादा की वाणी आवरण, आत्मा आवरण भेद करके आत्मा तक पहुंचते हैं। ये दूसरा एक आपका पुत्रों ने मेरे को बोला हुआ है, माँ भरत आनंद जी ने, और मैंने उसको फॉलो करता हूँ। तो मेरे खाली एक ही क्वेश्चन है, इनका ऑडियो क्लिप भी इस हिसाब से काम करेगा कि उनका जो प्रत्यक्ष वाणी था वो उस हिसाब से आवरणवादी होएगा? दोनों में कुछ डिफरेंस है? नहीं, दोनों आवरण भेदी है, लेकिन प्रत्यक्ष ज्यादा इफेक्टिव होगा। हाँ, वो तो अभी नहीं मिलने वाला अपने को। हाँ हाँ, तो ये उसका नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन है। ये भी असर करता ही है। कई लोगों को बात जब नहीं समझती थी पढ़ने से, तो इनकी हम्म ऑडियो सुनने के बाद बात समझ में आ रही है। सो अभी भी वो हम्म इफेक्टिव तो है, इफेक्टिव तो है, असर तो करेगा। अभी क्या है कि हम कितनी पूज्य भाव से सुनते हैं, हम हम्म कितना विनय से सुनते हैं, वो भी एक असर का भाग में काम करेगा। हमें अहोभाव से और अच्छी तरह से हम सुनते हैं, तो अवश्य हमको समझ में भी आएगा और आवरण टूटेगा। राइट। इफेक्टिव तो है, अभी भी इफेक्टिव तो है, असर तो करेगी, डेफिनेटली करेगी। वी हम्म आर वेरी लकी कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है कि जहाँ पे हम हम्म टेप रिकॉर्ड हुआ था। माहिर भगवान के समय ऐसा टेप रिकॉर्डर जैसा कुछ था नहीं, तो वो स्पीच जो हो गई वो हो गई। फिर उनके गणधरों ने जो धारण किया, और फिर उनके फॉलोअर्स और गणधरों ने जो धारण किया, उतना उतना लीकेज होते 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 हमको मिला है हम्म शास्त्र के स्वरूप के। भगवान महावीर ने ऐसा ऐसा कहा, ओरिजिनल शास्त्र तो सब मिट गए थे। बड़ा दुख वाला था। फिर एक राजा ने सब आचार्य को इकट्ठा किया एक जगह पे और बोला, आपको जितना जितना याद है आप बताओ। और फिर सबका इकट्ठा करके फिर वो आगम वगैरह जिसको शास्त्र बोलते हैं जैन के, उसका कनेक्ट। हम्म So this is all recollected to the best possible extent at that point of time. बराबर। और हम लोग लकी है कि हमारे पास दादा मिले जो स्टैम्प करते हैं कि ये बात ऐसी है, तीर्थंकर ये कहना चाहते थे, वितरागता ऐसी है। तो हमको सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में आज वही बात मिली है। सो वी आर वेरी लकी, और अभी स्टोर भी हुई है, तो और हजारों साल तो चलेगी, आगे की बात आगे। तो हम्म वाणी सुन सकते हैं, वो वाणी प्रत्येक ऑलमोस्ट विल गिव वेरी गुड इफेक्ट, ऑडियो सुनना। और प्रिंट हम्म भी है आपके वाणी के फॉर्मेट में। बराबर। बहुत सरस। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।
જય સચ્ચિદાનંદ સુબીરજી. જય સચ શાંતિ દાદા અનમ્યુટ કરજો. જય સચ્ચિદાનંદ નરેશભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ પુરીનાનંદજી. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. નરેશભાઈ જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ફોટો દેખાતા નથી પુરીનાનંદજી. એ તો હમણાં દેખા. પુલિયાનંદજી દેખાતા નથી? અમને દેખાય છે. મને કેમ દેખાતા નથી? એ છે ને તમારી સ્ક્રીન જરાક. હા, આવી જાઓ સાહેબ. જય સચ્ચિદાનંદ. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. બરાબર. હમણાં પેલો શબ્દ આવ્યો ને કે મનને તર કરે, હા, એટલે સાહેબ તરબોળ કરી દે. તરબોળ. તરબોળ એમાં ગરકાવ કરી દે, એમાં મગ્ન કરી દે. તરબોળ મગ્ન. ઓકે. મન એમાં ને એમાં સ્થિર થઈ જાય, એનું નામ મને તર કહેવાય. મન એમાં ને એમાં સ્થિર થઈ જાય, મંત્રમાં સ્થિર એ થઈ જાય. મંત્રમાં એવું સ્થિર થાય એને તર કહેવાય. હા 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 હા. ચાલો, મળ્યું ને આપણને. કારણ કે આ ટીચર છે અને ઘણા વર્ષોના જૂના વ્યક્તિ છે, એટલે ગુજરાતીનું બધા જૂના જૂના શબ્દોનો અર્થ ખબર હોય. ના ના, શબ્દોમાં મેં ઘણું સંશોધન પણ કર્યું છે એવા શબ્દોનું. બરાબર. અને ડિક્શનરી રાખું છું સાહેબ. હા, ચાલો, સારું થયું. ચાલો, તમારા નિમિત્તે ખુલાસો થઈ ગયો એક કે તરનો ગુજરાતી અર્થ એવો થાય છે કે મનને તરબોળ કરી નાખે, મગ્ન કરી નાખે, મન મંત્રમાં સ્થિર થઈ જાય. શક્તિ આપે, શાંતિ આપે અને એમાં તર કરી દે. હા, મોક્ષ શક્તિ આપે, શાંતિ અને એમાં તર કરી જાય. તર એટલે હા, એમાં એમાં તરબોળ રહે. મન એમાં ને એમાં 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 તરબોળ રહે. રચા કરે. હા, એમાં ને બસ એમાં રચા પચા. મન આનંદ એમાં આવે ને જતું. આનંદ. હા, એટલે આનંદ, એટલે અમે એ જ થોડી ચર્ચા કરી હતી કે મન એ બરાબર. બધું હોવાથી જે બીજા આપણને વિઘ્નના વિચારો આવે છે, મુશ્કેલીના વિચાર આવે છે, એ બંધ થઈ જાય. હા, બસ એ બંધ થઈ જાય. એ બંધ થઈ જાય અને આખું એમાં ને એમાં જ થઈ જાય, મંત્રમાં જ જતું રહે. એમાં હા, એમાં તરબોળ થઈ જાય. આનંદ એમાં આનંદ તરબોળ થઈ જાય. હા હા, બહુ સરસ. ચાલો, સારું થયું. તમે એક ઓથેન્ટિક જવાબ આપી દીધો. સારું. હવે મારો પ્રશ્ન હું કરું ત્યારે હા, કરો કરો. કે શુદ્ધ વ્યવહારમાં કશું કરવું ના પડે. તે રેફરન્સ છે, કાઢવાનો છે શાંતિ હા, દાદા? આપું રેફરન્સ સાહેબ. હા, બોલો બોલો. આપતા સૂત્ર 5 નંબરની નાની બુક, હા, એમાં સૂત્ર નંબર 3692. 3692. ઓકે, તમે ત્યાં સુધી બોલો. હા, હું હું બોલું છું. કાઢું છું. હા, શુદ્ધ વ્યવહારમાં કશુંય કરવું ના પડે. હમ. સંભળાય છે ને સાહેબ? હા, સંભળાય છે. હા, બોલો. હું સાંભળું છું, બોલો. હા, એ તો ઓટોમેટિક થાય. એ નિકાલી છે. શુદ્ધ વ્યવહારમાં અહંકારની જરૂર નથી. શુભ વ્યવહારમાં અહંકારની જરૂર હોય છે. બરાબર. પતી ગયું? હા, હા, બોલો. હવે આમાં શું જાણવું છે? આમાં શું છે કે શુદ્ધ વ્યવહારમાં આપણે કશું જ ન કરીએ છતાં જ વ્યવહાર થાય, હમ. એને શુદ્ધ વ્યવહાર કહેવાય. આમાં કેવું છે, આ છે ને કોઈ એક મુમુક્ષ કે એના સાથે વાત કરતા હશે દાદા ભગવાન, અને શુદ્ધ વ્યવહાર ને શુભ વ્યવહારની વાતો કરતા હશે, એટલે બેના કમ્પેરિઝન જેવું આવ્યું છે. એટલે એમાં સમજાવે છે કે શુભ વ્યવહાર કરો, કારણ કે બહાર તો દુનિયામાં શુભ વ્યવહારનું જ મહત્વ છે ને. હા, માં તો શુભ વ્યવહારનું જ મહત્વ છે. બરાબર છે. ઓકે, જો વાંચીએ. હું છે ને જરા ઉપરનું લઉં છું 91, પછી આપણે નીચેનું લઈએ.
હા બરાબર છે સાહેબ અત્યારે હા. બધા સંલગ્ન જ છે. આ બધા વ્યવહારના જ બધા છે એટલે થોડુંક સાથે હા એકબીજાને હા અનુરૂપ છે. એટલે અનુરૂપ છે એટલે થોડુંક એટલે બધું આખું શુદ્ધ વ્યવહારનું આખું આપણને પિક્ચર આવી જશે. ના ના એમાંથી કઈક અર્થ નીકળ્યા. હા, ખરો યથાર્થ વ્યવહાર કોને કહેવાય છે? શુદ્ધ વ્યવહારને. નિશ્ચય પ્રાપ્ત થયા પછી બાકી જે રહ્યું તેનું નામ શુદ્ધ વ્યવહાર. એટલે આત્મદ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થયા પછી જે વાત રહ્યું એનું નામ શુદ્ધ વ્યવહાર. બરાબર. ત્યાં સુધી હા, શુદ્ધ વ્યવહારમાં કશું કરવું ના પડે, એ તો ઓટોમેટિક થાય, એ નિકાલી છે. શુદ્ધ વ્યવહારમાં અહંકારની જરૂર નથી હોતી, શુદ્ધ વ્યવહારમાં અહંકારની જરૂર હોય છે. જરા ઉપર લ્યો તો પ્લીઝ. હવે નીચેનો સૂત્ર વાંચીએ આપણે. ને એની નીચેનો 93 94 વાંચીએ. હા બસ બસ. નિશ્ચય શુદ્ધ હશે તો વ્યવહાર જલ્દી શુદ્ધ થશે, નહીં તો નિશ્ચયને લક્ષ્યમાં રાખીને વ્યવહાર શુદ્ધ કરવો પડશે. નીચ સ્વરૂપનું ભાન થયા સિવાય વ્યવહાર હેલ્પ કરી શકશે નહીં, અને શુદ્ધ વ્યવહાર સિવાય નીચ સ્વરૂપનું ભાન હેલ્પ કરી શકશે નહીં. આ બેઉ રિલેટેડ છે. ઓકે, હવે આપણે તમારા મૂળ પ્રશ્ન પર આવી જાય 92 નંબરનો. ઓકે, હવે આમાં શું છે? એટલે આખું વ્યવહાર કોને કહેવાય એનું આખું બધું ડેપ્થમાં સત્સંગ થયો હશે, એમાંથી આ બધા સૂત્રો છે. એટલે નિશ્ચય પ્રાપ્ત થયા પછી જ વ્યવહાર કરે, તો એ પોતે વ્યવહાર સ્વરૂપ જ છે ને, પોતે જ નામધારી છે. એટલે નામધારી જે કરે એ બધું વ્યવહાર, એટલે હું જ કરું છું, એટલે એ વ્યવહાર જ છે. પણ નિશ્ચય પ્રાપ્ત થાય એટલે કે હું શુદ્ધાત્મા છું, એ દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થાય એટલે છૂટો પડે પ્રકૃતિથી. અને પ્રકૃતિથી છૂટો પડે એટલે પછી જે વ્યવહાર છે, એટલે જે મન વચન કાયનું જે ક્રિયાઓ છે બધી, એને યથાર્થ વ્યવહાર કહેવાય, એને શુદ્ધ વ્યવહાર કહેવાય. શુદ્ધ વ્યવહાર એટલે પોતે, શુદ્ધ વ્યવહાર એટલે પોતે એમાં તન્મયાકાર નથી. જે મન વચન કાયમાં થઈ રહ્યું છે એમાં કોઈ તન્મયાકાર ના હોય એટલે એ વ્યવહારને શુદ્ધ વ્યવહાર કહેવાય. પોતે એ વ્યવહારને જો જ્ઞાતા દ્રષ્ટા રહે તો એકદમ જ શુદ્ધ વ્યવહાર કહેવાય. એટલે હવે એ વ્યવહાર તો ડિસ્ચાર્જ ભાગ ખરો ને, એટલે ડિસ્ચાર્જ ભાગ ઓટોમેટિક થઈ જાય છે. એમાં કરવું ના પડે, કારણ કે એમાં કરતાપણાનો અહંકાર આખો નીકળી ગયો છે. એટલે ડિસ્ચાર્જ એટલે નિકાલી કીધું, એ ઓટોમેટિક થાય છે. હા બરાબર. બરાબર ને, એમાં અહંકારની જરૂર નથી. અને શુભ વ્યવહાર એટલે શું? કે હું નામધારી છું. અશુદ્ધ વ્યવહાર, અશુભ વ્યવહાર, શુભ વ્યવહાર અને શુદ્ધ વ્યવહાર. વ્યવહારના 4 ભાગા છે. હા એટલે 3 જે છે, અશુદ્ધ વ્યવહાર, માણસને મારી નાખે, માંસ ખાય, એ અશુદ્ધ વ્યવહાર. પછી ચોરી કરે, લુચ્ચાઈ કરે, એ બધો અશુભ વ્યવહાર. પછી ધર્મ ધ્યાન કરે, લોકોને મદદ કરે, એ બધું શુભ વ્યવહાર. અને જ્ઞાતા દ્રષ્ટા રહે એ શુદ્ધ વ્યવહાર. બરાબર. એટલે જે છેલ્લો શુદ્ધ વ્યવહાર છે એ આત્મા પ્રાપ્ત થયા પછી જ થાય. અને એના પહેલાના જે 3 વ્યવહાર છે ને, એ બધા અહંકાર સહિતના જ વ્યવહાર છે. એટલે હું નામધારી છું, એ દ્રષ્ટિ છે, એટલે એમાં અહંકારની જરૂર પડે. મેં દાન આપ્યું એટલે શુભ વ્યવહાર મેં કર્યો, મેં આને મદદ કરી એટલે અહંકારની જરૂર પડે એમાં. બરાબર. સારું કરો તો શુભ કહેવાય, ખરાબ કરો તો અશુભ કહેવાય, એટલો જ ફરક છે. બરાબર. એટલે એમાં કરતાપણા સહિત હોવાથી અહંકારની જરૂર કહેવાય. અને જ્યારે અહંકાર નીકળી જાય, એટલે કે રાઈટ બિલીફ બેસી જાય, એટલે પછી કરતાપણું નીકળી ગયું, એટલે એ મન વચન કાય ઓટોમેટિકલી થાય છે. એટલે એ નિકાલી કીધું. અને હા એમાં એટલે જે એમાં જરૂર નથી. એટલે જે ઉદય કર્મ આવે, જ્ઞાન લીધા પછીનું જે કોઈ ઉદય કર્મ થાય એ શુદ્ધ વ્યવહાર. એ જો જ્ઞાતા દ્રષ્ટા રહો તો. હા બસ જ્ઞાતા દ્રષ્ટા રહે તો જ એ શુદ્ધ વ્યવહાર. તો ખરો શુદ્ધ વ્યવહાર કહેવાય. અને બહારની દુનિયા એક્સેપ્ટ કદાચ ના એ કરે, હા મારી બરાબર. મન વચન કાયાનો હજી દુઃખદાયી હોય, તો બહારની દુનિયા એક્સેપ્ટ નહીં કરે. શેનો શુદ્ધ વ્યવહાર? તું તો હારું આટલું દુઃખ આપે છે બીજાને, તે તો આના પર ગુસ્સો કર્યો હતો, તે તો આમ બોલ્યો તો, તું તો આમ કરે છે. એટલે બહારની દુનિયા કદાચ ના આપે, પણ બરાબર. જ્ઞાનીની ભાષામાં શેના માટે શુદ્ધ વ્યવહાર કીધો? કે પોતે એમાં ભળતો નથી ને, એટલે કે બરાબર. ક્રોધ થઈ ગયો, પણ પોતે શું કે છે, આ ખોટું થઈ ગયું, આ ના હોવું જોઈએ. બરાબર. એટલે પોતે એમાં નથી ભળતો, પોતે આત્મા પક્ષે છે, એટલે વ્યવહારને શુદ્ધ વ્યવહાર કીધો. બરાબર. અને જયારે બહારનો ભાગ બી આખો ચોખ્ખો થઈ જશે, ત્યારે ખરો શુદ્ધ વ્યવહાર. અને ત્યારે લોકો એક્સેપ્ટ કરશે. હા અને ભગવાનની ભાષામાં શુદ્ધ વ્યવહાર. અને જ્યાર સુધી એ બહાર ચોખ્ખું નથી થયું, પણ અંદરથી ચોખ્ખું થયું છે,
એટલે હા. ક્યારે અપમાન થાય અને ત્યારે ક્યારે આ તો મેં ખોટું કર્યું, એટલે કોઈનું અપમાન થઈ ગયું આપણાથી અને અંદરથી બરાબર. પ્રજ્ઞા ચેતને કે આ તો ખોટું થઈ ગયું, આ ના થવું જોઈએ, હે દાદા ભગવાન મને આવું ના કરવાની શક્તિ, એટલે પોતે છૂટો પડે છે. હા. બહારથી લોકો શું બોલે છે, તો અપમાન કર્યું અને અંદરથી હું શું કઉ છું, આ ખોટું થઈ ગયું. એટલે બરાબર. એ જે ક્રિયા તો સહજ થઈ ગઈ, ઉદય કર્મને આધીન સહજ થઈ ગઈ, કારણ કે ભરેલો માલ છે. એટલે ભરેલો હા. માલ હા. પ્રમાણે એ તો ડિસ્ચાર્જમાં એવું થઈ ગયું, કોઈનું અપમાન થઈ બરાબર. ગયું. હા. એટલે પણ પોતે એમાં નથી, એટલે એને પછી દાદા ભગવાને ઉચિત વ્યવહાર કીધો. ઉચિત, શુદ્ધ નહીં. હા, એટલે એ શુદ્ધ નો પ્રકાર જ છે. હા. પણ બરાબર. જ્ઞાની દુને એક્સેપ્ટ ના કરે એટલે શુદ્ધ વ્યવહાર કીધો. એટલે હા. હા. શુદ્ધ વ્યવહારથી માંડીને શુદ્ધ વ્યવહાર સુધી, ઉચિત વ્યવહારથી માંડીને શુદ્ધ વ્યવહાર સુધીનો વ્યવહારને શુદ્ધ વ્યવહાર કીધો. બરાબર. ઉચિતમાં બરાબર. બહાર ચેન્જ નથી આવ્યો, પણ અંદર આવ્યો છે, અને શુદ્ધ વ્યવહાર હા. બહાર બી ચેન્જ આવ્યો છે અને અંદર બી પરિવર્તન થયું છે. બરાબર. એ બંને બાજુ શુદ્ધ. હા, એ બંને બાજુ શુદ્ધ. બરાબર. એટલે જ્યારે ઉચિત વ્યવહાર થતો હોય ત્યારે આપણો પુરુષાર્થ ચાલુ હોય. હા, પુરુષાર્થ હોય તો જ ઉચિત ગણાય, તો એ નહીં ગણાય. હા. અને એ પુરુષાર્થને કારણે પાછું શુદ્ધ થતું જાય. હા, એટલે જેમ 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 ડિસ્ચાર્જ ભરેલા માલ બધા ઓછા થાય તેમ તેમ શુદ્ધ હા. થતું. બરાબર. બરાબર સાહેબ, સરસ સરસ સમજ પડી હો. એટલે આપણો જય વ્યવહાર સચિદાનંદ. આમ શુદ્ધ ગણાય, પણ લોકોની દુનિયામાં ના. એટલે દાદા કીધું ઉચિત છે, પછી તમારો શુદ્ધ હા. વ્યવહાર તરફ જઈ રહ્યો છે. બરાબર. હા. એટલે આપણી અંદરની સમજ આ તો. હા, એટલે પછી આપણે એના પક્ષમાં ના બેસવા માટે પછી જે બીજા છે ને, શક્તિ માગવાનો પુરુષાર્થ કરીએ, નવ કલમો બોલીએ, હમણાં દુબાઈ ને બધું, એટલે આપણે એ શક્તિ માગીએ છીએ, જાગૃતિ વધારીએ છીએ, જેથી કરીને આપણો ડિસ્ચાર્જ ભાગ બી ચોખ્ખો થતો જાય. ચોખ્ખો થતું જાય. બરાબર. બરાબર સાહેબ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચિદાનંદ. શાંતિ દાદા. જય સચિદાનંદ હા. બા. હા જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. મહાત્માઓ, કોઈને પ્રશ્ન? કશ્યપજી. નથી હો. हाँ जी, एक वो हाँ, वो ऑडियो जो है शेयर करने का आता है, वो मैं आपको व्हाट्सएप में भेजूंगा उसका स्क्रीनशॉट। प्लीज वो प्लीज प्लीज। हाँ, मैं अभी वो दूसरा एक ऑडियो का क्लिप प्ले करना था, वो प्ले कर। कीजिए कीजिए, मैंने शेयर कर सकते हैं आप। हाँ हाँ, इसमें ना जो है ये मिनट, ये 19 जून को आया था। वो इसमें वो बोल रहे हैं कि जो थोड़ा सुनिए और बताइए। एक मिनट। તમારી પાસે હોય તો હું કેવું, નહીં તો તમારી દુકાન લો, દુકાન જવું છે. મારી પાસે જ્ઞાન છે, જ્ઞાની એવું કહે કે મારી પાસે જ્ઞાન છે. 6 મહિના મધ્ય તમારું ઠેકાણું ના પડે, મારું મધ્ય રોકડે પૂરેપૂરું 6 મહિના પૂરું થઈ જવું જોઈએ. આ તો પૂરું થઈ જવું જોઈએ 6 મહિનામાં. પૂરેપૂરું ના થતો હોય તો પછી તમે મારા આગળ નહીં જોવું લે. એવું તો વડીલોને કેમ કહેવાય? એવું વડીલોને કેમ કહેવાય? સરકારનું દે એવું આપણે તમારે રાખવું. એવું આપણે દે એવું આપણે. ये पूछे थे कि आपकी दृष्टि में ऐसा कोई ज्ञानी पुरुष है? यहाँ पर वो बता रहे हैं ना इसमें कि ज्ञानी ये कहे थे कि मारो पास ज्ञान छे, तो वो पूछ रहे हैं, तो वो बोले 6 महीना में तुम्हारे कोई ठिकाना ना पड़े, मारा तो रोकड़ू पूरू पूरू थाई जावे थवा જોઈએ, अथवा कुछ बता रहे, वो थोड़ा वर्ड्स क्लियर नहीं हो रहा। आपको समझ में आया? अनफॉर्चुनेटली मुझे भी क्लियर नहीं सुन पाया हूँ मैं ठीक से, जरा वॉल्यूम कम पड़ा, क्लैरिटी थी लेकिन वॉल्यूम मुझे थोड़ा अच्छा, आई कुड नॉट कैच इट, मे बी आफ्टरवर्ड्स थोड़ा मुझे भेज देना, मैं सुन के बता दूंगा। अच्छा। दूसरा मैं ये आपको बोलना चाह रहा था इस रेफरेंस में कि मैंने थोड़ा सा जो मैं ढूंढता हूँ, ठीक है, तो ये जब ऑडियो आता है थोड़ा मैं उसको सर्च भी करता हूँ जो है अफवानी वगैरह में, तो कभी कभी थोड़ा सा ये मुझे ऐसे मालूम नहीं, हो सकता है मैं सही नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसे लगता है थोड़ा बहुत
वो एब्रिज्ड भी होता है, क्योंकि कई बार मान लो दादाजी 2 बार बोलते हैं और वो जो है उसको मान लो वो रेपिटेशन अवॉइड करता है, करने के लिए वो थोड़ा सा एडिट करते हैं, मतलब रीडेबल फॉर्मेट और जो बोलने का फॉर्मेट थोड़ा अलग होता है। आप क्या बोलते हैं? हाँ होगा ना, बराबर है, क्योंकि उनको थोड़ा कम सुनाई देता था, इसलिए हाँ रिपीट करना पड़ता था, ऊंचा आवाज में बोलना पड़ता था। सो हाँ हाँ, तो उतना एडिट तो ऑब्वियसली प्रिंट करने समय रिपीट करने का कोई मतलब नहीं ना। हाँ, वो रीडेबल फॉर्मेट और जो सुनने का फॉर्मेट अलग होता है। हाँ अच्छा, तो हाँ, रिपीटेशन अवॉइड करने के अभी लिए। अभी मेरा ये क्वेश्चन है कि जो मतलब जो तीर्थंकर की वाणी निकलती है, ओरिजिनल निकलती है, ठीक है, अब उसमें जो है मतलब उसमें क्या प्रोसेस होता है कि वो वाणी जो है ओरिजिनल निकलती है, उसमें उनका वो क्या वो संवत्सरण होता है, तो उसका उसका लेकिन उसका लाभ जो है वही ले सकते हैं कि जो उसमें जा सकते हैं। अब उसके बाद जो है फिर गंधर्व होते हैं, वो उसको लिखित में करते हैं। तो जब जो संवत्सरण में जो वाणी सुनी जाती है, या मतलब कि कहने का मतलब कि जो प्रत्यक्ष आती है और जो लिखित में आती है, उसमें उसका प्रभाव में क्या अंतर होता है? थोड़ा होगा, थोड़ा होगा, क्योंकि वो जो शब्द जो है ना, शब्द, वो शब्द का इफेक्ट ज्यादा होता है। कान में जो शब्द कहते हैं उसको श्रवण बोलते हैं, तो श्रवण की इफेक्टिवनेस बहुत ज्यादा होती है, उससे तो ज्यादा होती है। बट अभी नहीं है, सुन पाए, तो फिर दूसरा कब होता क्या है कि कीर्तन के बाद गंधर्व भी उपदेश देने जाते हैं, तो उनकी वाणी भी अगर सुनते हैं डायरेक्टली तो वो भी असर करती है। और नहीं है तो फिर वो प्रिंटेड फॉर्मेट में पढ़ने वाली बात हो जाती है, तो उसमें थोड़ा डिफरेंस तो आएगा ही, थोड़ा डिफरेंस तो आएगा। मतलब कि कोई बोले और कोई लिखे तो थोड़ा मतलब वो उसमें वो अंतर जड़ आता हो है। जाती है, वो है ना, चेतन वाणी जड़ हो जाती है, वो फिजिकल फॉर्मेट में आ जाती है ना, हम्म, वर्ड्स के मीन्स प्रिंट मीडिया में। और वो हम्म। चेतन है तो वाइब्रेशन साउंड लेवल सब वो इसको चेतन वाणी बोलते हैं। तो उसकी असर तो एक अलग अलग लेवल की ही होती है। तो आप जैसे बोलते हैं कि वो लिखित में जड़ होती है, और जो वाणी है जो हमारे पास जो है, तो वो हमारे जैसे आपने बताया भी, हम फॉर्चुनेट है कि हमारे को हमारी रिकॉर्डिंग किए हुई है, तो इसको हम सत्संग में थोड़ा वो, क्योंकि ये चेतन वाणी है, और मेरे को भी ऐसा अनुभव से आता है कि इसमें जब मैं सुनता हूँ तो उसमें उसका प्रभाव होता है, ज्यादा होता है उसमें, जो पढ़ने से ज्यादा सुनने में इसका प्रभाव होता है। तो वो तो मैं रोज सुनता हूँ जो है, तो इसमें जो है हम सत्संग में अगर ऐसा कर सकते हैं, जो है थोड़ा ज्यादा सुनने का कुछ प्रोग्राम रख सकते हैं। बाकी मुझे मालूम नहीं है, ऑर्गेनाइजर तो आप हैं, मतलब मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, पॉसिबिलिटी है तो नहीं, अपनी। इसमें इतनी जरूरत नहीं है, बिकॉज यू सी सत्संग में इट्स अ लाइव इंटरेक्शन विथ आपदभूतरस एंड महात्मा। और वो लाइव इंटरेक्शन में जो वो वाणी निकलती है, वो वाणी का इफेक्टिवनेस भी अच्छी रहेगी, अच्छी अच्छा, रहेगी। हाँ, हाँ भले इट मे नॉट बी ऑफ दैट लेवल, बट ये वन ऑन वन इंटरेक्शन है, जहाँ पे महात्मा अपने प्रश्न का समाधान प्राप्त करते हैं, आइदर हाउ टू अप्लाई द ज्ञान और व्हाट इज न्यू अबाउट दिस थिंग। इसलिए वहां पे ये प्ले करना जरूरी नहीं है, बिकॉज दिस इज समथिंग, ये ऑडियो क्लिप ऐसी चीज है जो कोई भी बाद में भी सुन सकता है अपने घर पे। प्रश्न का जवाब वो ऑडियो क्लिप में शायद हो, शायद ना भी हो, बट ये लाइव इंटरेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज वो उसका एक महत्व अपनी जगह पे है। भाई लाइव इंटरेक्शन पूछने से सामने वाले की क्या कमजोरी है, उसकी क्या गलत मान्यता है, वो पूछने से उसको खुद को अपनी कमजोरियां का एहसास होगा, और डायरेक्ट सुनने से उसको डायरेक्ट उसको रिजल्ट मिलेगा। सो वो जो वन ऑन वन क्लैरिफिकेशन है वो अपनी जगह पे सही है, और दिस इज समथिंग विच कैन बी हर्ड एट होम ऑल्सो। सो सत्संग के अंदर इसको लाने फिलहाल तो जरूर लगता नहीं है, बट मे बी इन फ्यूचर अगर कोई लाता भी है तो नथिंग रॉन्ग, इट कुड वर्क एज अ बेस कि भाई ये वाणी है, अभी इसके ऊपर थोड़ा स्वाध्याय कर सकते हैं। हाँ सही है। आप जो बता रहे हैं, मैं वन ऑन वन इंटरेक्शन की नहीं मैं बोला था, जो हम जो पढ़ते हैं ना, जो आप वाणी पढ़ते हैं, जो उसमें जो पढ़ने वाला है ना, उसकी बात कर रहा था कि उसका, और जो वो नहीं सुनने। नहीं, सी व्हेन एनीवे अ पर्सन इज लाइव, हाँ
then वो लाने की for the moment I don't think is necessary. अच्छा ठीक हाँ, anyway a live person is there ना. अच्छा ठीक हाँ. है, चलो ठीक है, फिर मैं आपको भेजूंगा उसका, फिर आप बता दीजिए। जय सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ કશ્યપજી. મહાત્માઓ, કોઈને કઈ પ્રશ્ન? થોડો સમય છે, તમારા નિમિત્તે આપણને બધાને લાભ થશે. શાંતિ દાદા, એક મિનિટ. હા, અનમ્યુટ કરજો શાંતિ દાદા. જય સચ્ચિદાનંદ નરેશભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ પુરીનાનંદજી. हाँ, जय सच्चिदानंद. બોલો બોલો. નરેશભાઈ, હા બોલો બોલો. આપણે બુક નંબર 1 આત્મસૂત્ર છે ને, ઓકે. એનું સૂત્ર કાઢો 681-82. 681-82 ને? ઓકે, કાઢું છું. એક જ મિનિટ. ઓકે. આ કાઢ્યું. બરાબર છે. હા પુરીનાનંદજી. हाँ बोलो. हाँ 681 बराबर. હા हाँ वांचिए આપણે. ભૂખ મટા એક મિનિટ, એક મિનિટ, એક મિનિટ. હા બરાબર, બોલો. ભૂખ મટાડવા માટે રોટલો ને શાક ખાવાનું છે, ટેસ્ટ ને માટે નહીં. ટેસ્ટ ને માટે ખાવા જશો તો રોટલો ને શાક ભાવશે નહીં, માટે એ વેદ થઈ જશે. ત્રણ વેદથી આ જગત આખું સડે છે. આ કુદરતની રમતમાં જો ત્રણ વેદ જ ના હોત તો સંસારમાં છૂટા રહેવાત. બધી રમત જ ત્રણ વેદમાં છે. આ ત્રણને જો ખોરાક તરીકે ગણવામાં આવ્યા હોત તો કશો વાંધો જ ના હોત, પણ એને વેદ કહ્યું. પુરુષ વેદ, સ્ત્રી વેદ અને નપુંસક વેદ, એ ત્રણ વેદ છે. એટલે ભૂખ એટલે એટલે એ કે માટે વેદ થઈ જશે, એટલે પછી એ પૂતગલ રમણતા આખું ચાલુ કરાવી દેશે. ટેસ્ટ માટે ખાવતો તો એમ. ભૂખ મટાડવા પૂરતું હોય તો જાગૃતિ રહેશે, આત્મભાવ થોડો ભાગ રહેશે, અને એટલે દેહાદ્યાસ વધી જશે. ટૂંકમાં છે ને, શોખ માટે ખાઓ એટલે દેહાદ્યાસ વધી ગયો, એટલે દેહાદ્યાસ એટલે પછી પુરુષ વેદ, સ્ત્રી વેદ ને નપુંસક વેદ, એટલે પછી પાંચ ઇન્દ્રિયોના સુખ ને બીજા વિષયનો સુખમાં આખી રમણતા ચાલુ થઈ જશે. એટલે જો આ વેદ ના હોત, ઉદ્ધર રમણતા ના હોત તો બધે છૂટા રહેવાત. આપણે વિષયનો ભાગ ના હોત તો આ સંસારમાં છૂટો રહેવાત, પણ વિષયનો ભાગ છે એટલે સંસારમાં છૂટું રહેવાતું નથી. હું એક જ સેકન્ડ આવું, ચાલો. હા. હા એટલે મને આવું સમજાય છે કે આ ત્રણ વેદ એટલે આના માટે એ કહેવા માંગે, દેહાદ્યાસ વધી જાય છે, વિષય વધી જાય છે, અને એ આહારનું રમણતા જે પૂતગલ રમણતા તરફ લઈ જવાથી એ આખું આવરણ લાવે છે. અને ખાલી ભૂખ મટાડવા માટે ખાધું હોત તો વાંધો આવે નહીં. અહીંયા વેદનો અર્થ સાહેબ જાણવું કર્યો છે કે આનંદ લેવું એવું કર્યો છે? વેદ એટલે વેદવું. હા વેદવું આ વેદ જ છે ને. શોખ માટે ખાય હા છે, વેદ જ છે ને. હા મજા આવી બરાબર. છે કે છે ને, હા હા ભોગવે છે. બરાબર. હવે આમાં એમ કે છે કે આ ત્રણ વેદ જ ના હોત બોલો. હા બોલો.
863 683 લઈ લો રાધર. ઓકે ઓકે. ત્રણ વેદ જ ના હોત આ આ ત્રણને જો ખોરાક તરીકે ગણવામાં આવ્યા હોત તો હા કશો વાંધો જ ના હોત, પણ એને બરાબર. વેદ કહ્યું. એટલે શું છે કે એને વેદે છે, એને ખોરાક તરીકે એટલે ડિસ્ચાર્જ નિકાલ તરીકે નહીં. જે જાનવરો છે ને એ વેદતા નથી, એનો ખોરાક છે. એટલે એક પ્રક્રિયા છે ને, નૈસર્ગિક પ્રક્રિયા છે ઓલું વધારવા માટે, વસ્તી બરાબર. વધારવા માટે. તો હા વાંધો નથી, પણ આ એને મોજ શોખનો વિષય બનાવી દીધો છે. એટલે એને વેદે છે, એટલે એને ભોગવે છે અને પ્રોબ્લેમ થાય છે. એ ખોરાક એટલે શું છે કે એક સામાન્ય પ્રક્રિયા રૂપે મૂકી દીધું હોત વિષયને બરાબર. હા તો વાંધો નતો, પણ એને શોખનું સાધન બનાવી દીધું. વિષય ક્યારે શોખનું સાધન હતું જ નહીં ચોથા આરામાં. હવે આ પાંચમા આરામાં એને શોખનું સાધન બનાવી દીધું, એટલે એનો તકલીફ છે બધી. એમ જેમ જાનવરો બધા કુદરતમાં જે બધા છે એ કુદરતી પ્રક્રિયા જ છે ને, એ કઈ શોખ હા માટે નથી કરતા. એ તો એની એનો ટાઈમ હા હોય એટલે પૂરતું જ હોય. બરાબર. પણ આ શોખ માટે થઈ જાય છે, એટલે પછી એ વેદે છે, એટલે ભોગવે છે, અને પછી તકલીફ ઊભી થાય છે. ખોરાક તરીકે એટલે ઓલું પૂરણ ગલન તરીકે રાખ્યું હોત એને, એ કુદરતી હા પ્રક્રિયા તરીકે. આહાર, ભય, ઓલે 4 સંજ્ઞા છે ને, આહાર, ભય, નિદ્રા ને મૈથુન. એટલે હા એટલે એ 4 તરીકે રાખ્યું હોત તો કઈ બહુ વાંધો નહોતો. હા પણ એને શોખ તરીકે રાખ્યું હા એટલે એમાં એને વેદન થયું. હા બરાબર. જય એટલે સચ્ચિદાનંદ. આવું મને સમજાય છે. હમ હા જય ખોરાક હા તરીકે. બરાબર સર. હમ બરાબર. જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ શાંતિ દાદા. હા वाह ચાલો. जय सच्चिदानंद. कश्यप जी अनम्यूट कीजिए. जय हाँ जी, सच्चिदानंद. जैसे मैं एक और पूछता हूँ आपको। ये जो है बुक नट्टू काका की बुक है ना, 55 है, उसमें से पेज 31 में है। इसमें आप पढ़िए जो है, ये जो पिंक में दिया है आप पढ़िए। હા नट्टू નટ્ટુ भाई। આ લોક હરિ હરિ કૃષ્ણ કૃષ્ણ રામ રામ શિવ શિવ અલ્લાહ અલ્લાહ બોલે છે, તે કોને પહોંચે છે? દાદાશ્રી કોઈને પહોંચે જ નહીં. એ તો ખાલી શાંતિ થાય. આ બધું તો જપ યજ્ઞ કહેવાય. પણ પ્રાર્થના કરે તો પહોંચે. તીર્થંકરો સમયવર્તી હોય તેમને કશું જ પહોંચે નહીં, પણ પહોંચ્યાનું દળ તેમને ये फल મળે. फल हाँ, फल ये गलत लिखा, फल है, फल है, હા, फल। પહોંચ્યાનું ફળ તેમને મળે. ઓકે. हाँ। તીર્થંકર સમયવર્તી હોય પણ કશું એમને પહોંચે નહીં, પણ એને પહોંચ્યાનું ફળ તમને મળે. મનને તર કરે તે મંત્ર કહેવાય. માનસિક શાંતિ કરે તે મંત્ર. આવી ગયો. માનસિક શાંતિનું ફળ મસ્તી આવે અને આનંદનું ફળ નિરાકુરતા આવે. બરાબર છે. આ રામ રામ કૃષ્ણ કૃષ્ણ વગેરેના નામ બોલ બોલ કરે તે જપ યજ્ઞ છે. એ તો પશુચારો છે. ઘાસ ખાવા ખરોખર છે. કારણ बरोबर बरोबर છે। ઘાસ ખાવા બરોબર છે. ઘાસ ખાવા બરોબર છે. કારણ કંઈક તો ખાવાનું જોઈએ ને. બધા જપ યજ્ઞથી શાંતિ થાય અને દાદા ભગવાનને સ્વીકારો, એ તો ડિરેક્ટ અમૃત જ છે. બધી ઇન્દ્રિયો डेढ़ डेढ़ દળ ફજે તો બધી ઇન્દ્રિયો દેડ डेढ़ ફજે તો डेढ़ 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 बजे तो। હા, દેડ ફજે તો દોઢ ફજે તો કરાવે છે. અમારા પગલા જ્યાં જ્યાં પડે તે તીર્થ ભૂમિ. કારણ કે દેહના માલિક નથી, મનના માલિક નથી ને વાણીના પણ માલિક નથી. તેમના જ્યાં જ્યાં પગલે તે તીર્થ કહેવાય. ઓકે. हाँ, अब इसमें जो है मुझे जो पूछना है मैं बताता हूँ। ये जो है पहले वो बोलते हैं कि ये लोग जो है बोलते हैं उससे जो है मतलब कोई किसी को पहुंचता नहीं, वो खाली शांति देते हैं।
जप यज्ञ कहलाते हैं, और वो प्रार्थना करे तो पहुंचते हैं। ये थोड़ा थोड़ा सा समझ में आता है। और फिर ये जो बोलते हैं तीर्थंकर समयवर्ती होए, ये मुझे नहीं समझ में आया। तीर्थंकर वो समयवर्ती होए तेमने कछु पहुंचे नहीं, ये क्या बताना चाह रहे हैं? अभी इनकी जागृति इतनी श्रेष्ठ होती है कि वो हर समय के ज्ञाता दृष्टा रहते हैं। हम्म समय, हाँ, मन में जो विचार आते हैं, वाणी वर्तन, वो समय के लेवल पे हम्म, वो उनकी जागृति रहती है कि ये विचार आया, ये गया, ये गया, ये गया, ये वाणी या वर्तन हाँ। बढ़ती, यानी ही कैन ऑब्जर्व इवन द ईच एंड एवरी समय, हर एक हम्म समय का ज्ञाता दृष्टा रह सकते हैं। हम्म। तो उनको उनको पहुंचते नहीं, फिर भी हमको उनका वो हमारे प्रार्थना का फल मिलता है हमको, इसलिए वो हमारे को हाँ, वापिस आ जाता है, ऐसा बोलना चाह रहे हैं? हाँ, बेसिकली यानी वो डायरेक्टली नहीं लेते, बट हम करते हैं तो कुदरत में जाके वाइब्रेशंस हमारे पास ही आते हैं ना, हम मांगते हैं तो। अच्छा, मतलब वो तीर्थंकर एकदम वितराग हो गए, इसलिए वो कुछ एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए बोला है तेमने हाँ, कछु। हाँ, हाँ, दे अच्छा। डू नॉट डू एनीथिंग डायरेक्टली। हम्म लेकिन लेकिन अगर तीर्थंकर की डायरेक्ट आराधना हो रही है तो उनके जो रक्षक देवी देवता है वो हेल्प करते हैं। अच्छा। मैं आज और सीमंत स्वामी का भक्ति करूँ तो सीमंत स्वामी विल नॉट हेल्प मी, बट उनके जो भी शासन देव देवियां होते, उनकी कृपा या हेल्प सहायता मिलती है। और जो जप यज्ञ बताया है उससे शांति मिलती है, वो उसके बारे में थोड़ा बताएं। हाँ, जप 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 यज्ञ, यानी कोई भी एक शब्द ले लो या और उसको कॉन्टिन्यूसली रिपीट करना, उसको जप यज्ञ कहा है। तो उससे थोड़ी शांति मिलेगी, क्योंकि हमारा हमारा वो होता है ना, वाणी और मन दोनों उसमें स्थिर हो जाते हैं। और अच्छा। हाँ, जस्ट खाली एक स्टेबिलिटी है, एक एक जागृति वहां पे स्टेबल हो जाती है। हम्म। बाहर घूमती नहीं है, चित्त बाहर जाता नहीं है, दूसरे विचार आते नहीं है। सो उसको इस प्रकार से जप यज्ञ कहा है। अच्छा। और फिर ये तो मुझे समझ में आया, मानसिक शांति नो फल मस्ती आवे, अन आनंद नो फल निराकुलता आवे, ये तो मुझे समझ में आया। ये आपने पहले समझाया था। राम राम कृष्ण, ये जो बता रहे हैं कि ये जग जप यज्ञ है, ये मतलब ये जो है मतलब लोअर लेवल का बता रहे हैं ना, ये ऐसा बताना हाँ, चाह हाँ, रहे लोअर लेवल का है, हाँ, हैं? प्राइमरी। और वो दादा भगवान नो असीम जय जयकार हो, अब इसका कंपैरिजन कर रहे हैं। ये तो डायरेक्ट अमृत से, ये मतलब कि सीधा हमारे जो है अंदर जो भगवान है उस तक हम हमारा लक्ष्य हाँ, होता है, इसलिए हाँ, इसलिए हाँ, इसके लिए हाँ, डायरेक्ट आत्मा की भक्ति करते हैं, समझ के भक्ति करते हैं ना कि मेरे अंदर के आत्मा की भक्ति कर रहा हूँ, नॉन महात्मा है तो। और हम्म, महात्मा है तो उसको तो मालूम है कि मैं अंदर के दादा भगवान की भक्ति कर रहा हूँ। अच्छा, इसलिए बोला डायरेक्ट अमृत से। हाँ, डायरेक्ट अमृत है। और ये जो बताया बद्धी इंद्रियो डेढ़ बजे तो करावे छे, ये मुझे समझ नहीं आया क्या होता है डेढ़ बजे क्या है शाम? कि अभी अभी दिस इटसेल्फ शोज, ये अलग अलग पैराग्राफ्स में है ना, तो हाँ, उन्होंने कुछ बात निकली हो गई, उठा उठा के लिख दिया, कुछ दूसरी हाँ, बात भी उठा के लिख दिया है, कुछ हाँ, आगे आगे पीछे रेफरेंस नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत इतना मैं कह सकता हूँ कि ये जो पांचों इंद्रिय है वो हमको फंसाती है, हम्म, कहीं ना कहीं दृष्टि बिगड़ती है, चिटक जाती है, या कोई अच्छी चीज में भी चिटक जाती है, तो वो संसार की ओर खींचती है ना, कोई अच्छी। फजेतो तो वो बदनामी होता है, मुझे समझ में आया। अब डेढ़ फजेतो क्या होता है? मतलब वो बहुत ज्यादा बदनामी करा? फियास्को 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 कराती है, हाँ जी। नुकसान। फियास्को फियास्को इंग्लिश में इसको फियास्को बोलते हैं ना। हाँ, बदनामी बदनामी एक भाई, तरह का। बदनामी नहीं, फियास्को यानी क्या, वो अपनी टाइम, एनर्जी, जागृति सब वेस्ट करा देती है। इसमें अच्छा। सुख की मान्यता लगती है, इसलिए उसके पीछे और भागता है, और बाद में पता चलता है इसमें तो कुछ था ही नहीं। अच्छा, तो डेढ़ पे जाए तो मतलब वो ज्यादा एम्फसाइज करने में वो ज्यादा बहुत ज्यादा कराती है इस तरफ नहीं, यहाँ से। डेट फजे, सिर्फ फजे तो होना, यानी इसका फियास्को हो गया है। मेरे को लगा ये आदमी काम करेगा, लेकिन इसने कुछ नहीं किया, मेरा तो फियास्को हो गया यार। तो डेट फजे ने लिटिल मोर देन फजे था, अच्छा। एक प्रकार का इसको फियास्को, इंग्लिश वर्ड इज फियास्को। अच्छा, ठीक है। और हमारा पगला जहाँ जहाँ पड़े थे तीर्थ भूमि। हाँ, वो तो है ही ना, बिकॉज वो तीर्थंकर के नजीक की दशा में है। हम्म, मन वचन काय के मालिक न होने की वजह से, हम्म। जैसे तीर्थंकर जहाँ जाते हैं वो तीर्थ की स्थापना होती है, तो दादा भी जहाँ जहाँ गए तो उसको इक्विवेलेंट टू तीर्थ भूमि की एक है, कह सकते हैं।
मतलब मालिकी नहीं होने के कारण उनके उनके परमाणु इतने शुद्ध हो जाते हैं, तो वो ये प्रभाव करते हैं हाँ, शायद। ये प्रभाव पड़ता है। अच्छा, ठीक है, ये मुझे पूछना था। ठीक, धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ. કશ્યપજી, हाँ जी। આપ આપણે સમય પૂરો થઈ ગયો છે. हाँ પુનિનાનજી, તમે ત્રિમંત્ર બોલાવો. કશ્યપજી ફોલો ठीक, કરના. ठीक। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायाणम, नमो वत्सायानम, नमो लोये सौव साहुणम, नमो लोए सव साहुनम, ऐसो पंच नमुकारो, ऐसो पंच नमुकारो, सौ भावपनासनो, सर्व पावपनासनो, मंगलाणंच सवेसिम, मंगलानम च सर्वेसिम, परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ કશ્યપજી. જય સચ્ચિદાનંદ પુનિનાનજી.